Hello friends, welcome to Guide for Nurses channel. तो today video is menstruation और ovarian cycle, that is GNM थर्ड ईयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन OBG रिलेटेड. ठीक है, इसमें मैंने सिर्फ MCQ एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. First question is the hormone responsible for the menstrual cycle are option A gonadotropins, option B estrogen and progesterone, option C gonadotropins and estrogen, option D gonadotropin, estrogen and progesterone. Correct answer is option D gonadotropin, estrogen and progesterone. Because of hormone responsible for menstrual cycle are gonadotropin releasing hormone फ्रॉम हाइपोथैलेमस ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उसका नाम क्या है, गोनाडोट्रोपिन. जैसे कि LH एंड FSH. और एंटीरियर पिट्यूटरी एंड गोनाडल हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल. ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड APG, ऑप्शन सी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड PPG, ऑप्शन डी ओवारीज. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, जैसे कि ए इनिशिएटर ऑफ menstrual cycle, responsible for initiating the menstrual cycle. Next question is a mother with 9-month baby is planning for tubectomy. What is the ideal time for surgery following menstruation? Option A ovulatory phase, option B menstrual phase, option C secretory phase, option D proliferative phase. Correct answer is option D proliferative phase. Because of tubectomy should be done best within a week after menstruation, means of proliferative phase. और postpartum sterilization is performed within 72 hours of vaginal delivery. एक्चुअली ट्यूबेक्टमी परफॉर्म किया जाता है आफ्टर vaginal delivery because of name of normal delivery, either after menstruation period. ठीक है, next question is this phase is so named because it is when the follicles in the ovary grow and form a nature egg. Name the phase. Option A menstruation, option B ovulation, option C luteal phase, option D follicular phase. Correct answer is option D follicular phase. Because of the time period between first day of menstruation to ovulation, that is 14th day, is called follicular phase or proliferative phase, in which follicles in the ovary grow and form a nature egg by effect of follicle stimulating hormone from pituitary. तो इसी follicular phase में follicle इन दी ओवरी में फॉलिकल ग्रो करता है एंड फॉर्म होती है एक नेचर एग में. ठीक है, नेम ऑफ द फेज इज फॉलिकुलर फेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओवरियन साइकिल इज इनिशिएटेड बाय ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी एंडोर्फिन्स एंड ऑप्शन डी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसे कि FSH, LH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. Next question is the average blood loss in a normal menstrual cycle is option A 200 to 250 ml, option B 50 to 100 ml, option C 100 to 150 ml, option D 150 to 200 ml. Correct option is option B 50 to 100 ml. Because of the average amount of blood loss during a period is 30 to 40 ml and 9 out of 10 women losing less than 80 ml. So correct answer is option B 50 to 100 ml. Next question is the constant phase in a menstrual cycle is option A menstrual phase, option B proliferative phase, option C luteal phase, option D ovulation phase. Correct answer is option C luteal phase. Because of the period between ovulation मतलब 14 days को क्या बोलते हैं, constant phase. After 14 days that called post ovulatory or luteal phase और constant phase. ठीक है, तो 36 cycle ovulation occur on 22 day of cycle. Next question is ovulation in a female with a 36 days cycle occurs between option A 14 to 18 day, option B 30 to 34 day, option C 20 to
24th day. Option D, 8 to 12th day. Correct answer is option C, 20 to 24th day. Next question is the phase in which the lining of the cell of ovarian follicle are stimulated by luteinizing hormone to develop the corpus luteum to produce progesterone and estrogen hormone. Uh, Option is option A, menstrual phase, option B, proliferative phase, option C, secretory phase, option D, follicular phase. Ovarian follicle is a cell that is stimulated by luteinizing hormone to develop the corpus luteum to produce प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन हार्मोन कौन सी फेज में होती है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सिक्रेटरी फेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन सीक्रेटेड ड्यूरिंग द सिक्रेटरी फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर. ऑप्शन ए, द ऑनसेट ऑफ ओव्यूलेशन, ऑप्शन बी, द रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन सी, द इंसिडेंस ऑफ कैपिलरी फ्रैगिलिटी, ऑप्शन डी, सस्टेनिंग द थिक एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सस्टेनिंग द थिक एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस. सीक्रेटरी फेज में प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा सीक्रेट होती है बिकॉज ऑफ एंडोमेट्रियम. यूटेरस जो लाइनिंग है एंडोमेट्रियम, उसको थिक करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉर्क्स्क्रू शेप्ड एंडोमेट्रियल ग्लैंड इज सीन इन. ऑप्शन ए, लेट सीक्रेटरी फेज, ऑप्शन बी, अर्ली proliferative फेज, ऑप्शन सी, लेट proliferative फेज, ऑप्शन डी, early secretory phase. Correct answer is option D, early secretory phase. Because of during early secretory phase, growth of endometrium gland by influencing of progesterone and estrogen increase and also filled the glycogen, so it become corkscrew shape. ठीक है, तो अर्ली सिक्रेटरी फेज के वजह से एंडोमेट्रियम में ग्लाइकोजन ज़्यादा होती है, इसकी वजह से कॉर्क्स्क्रू शेप एंडोमेट्रियम लाइनिंग दिखने के लिए मिलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द वोमेन डज नॉट नर्स हर चाइल्ड द मेंस्ट्रुअल फ्लो विल प्रोबेबली रिज्यूम विथ. ऑप्शन ए, 2 to 4 weeks आफ्टर डिलीवरी, ऑप्शन बी, 8 to 10 weeks आफ्टर डिलीवरी, ऑप्शन सी, 4 to 6 weeks आफ्टर डिलीवरी, ऑप्शन डी, 6 to 8 weeks आफ्टर डिलीवरी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 6 to 8 weeks आफ्टर डिलीवरी. एक्चुअल में यहाँ पे नर्स मतलब ब्रेस्ट फीडिंग. ए वोमेन डज नॉट ब्रेस्ट फीड हर चाइल्ड द मेंस्ट्रुअल फ्लो विल प्रोबेबली रिज्यूम, रीस्टार्ट. रिज्यूम मीन्स रीस्टार्ट विद इन व्हिच वीक्स. तो करेक्ट आंसर इज 6 to 8 weeks बिकॉज ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लो विद रिटर्न अर्ली इफ मदर इज नॉट फीडिंग हर चाइल्ड कंपेयर टू ब्रेस्ट फीडिंग मदर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड. मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन इज द स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड ऑफ ए गर्ल. ठीक है, तो ऑप्शन ए, ओवरियन साइकिल, ऑप्शन बी, एंड्रोपॉज, ऑप्शन सी, मेनोपॉज, ऑप्शन डी, मेनर्की. करेक्ट आंसर ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मेनर्की. बिकॉज ऑफ द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड ऑफ एन एडोलेसेंस गर्ल दैट इज नॉर्मली occurring between 12 to 17th year of age called मेनर्की. ठीक है, तो स्टार्टिंग पीरियड कौन से टाइम में होते हैं? मेंस्ट्रुअल पीरियड 12 to 17th ईयर्स ऑफ एज ऑफ ए एडोलेसेंस गर्ल. दिस फेज इज कॉल्ड मेनर्के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परमानेंट सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन. दिस क्वेश्चन मीनिंग इज परमानेंटली स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट कॉल्ड. ऑप्शन ए, एमिनोरिया, ऑप्शन बी, मेनोपॉज, ऑप्शन सी, ओलिगोमेनोरिया, ऑप्शन डी, hypomenorrhea. Correct answer is option B, menopause. Stop of the menstrual cycle that is called menopause, the age of 45, and starting of the menstrual cycle that is called menarche, the age of 12 and 12 to 17. Next question is the endocrinological changes occurring during menopause include all the following except. Meaning of this question is endocrinological meaning endocrine gland की जो changes, this called endocrinological changes. Option A, fall in serum estradiol level, option B, fall in FSH level, option C, increase in LH level, option D, increase level of androgens. Correct option is option B, fall in FSH level. Because of the
Physiological causes of menopause is decreased level of production of ovarian hormone, mainly estrogen and progesterone. So during this menopause, the production of estrogen decline, but the secretion of FSH and LH remain high by anterior pituitary gland. दिस इज अ चेंजेस ऑफ एंडोक्राइनोलॉजिकल। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? ड्यूरिंग मेनोपॉज में, मेनोपॉज की टाइम पे एंडोक्राइन ग्लैंड की जो चेंजेस है वो क्या है कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोडक्शन क्या डिक्रीज होती है, बट एफएसएच एंड एलएच हार्मोन इंक्रीज होती है, सीक्रेशन इंक्रीज होती है बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन कॉज ऑफ मेनोपॉज इज ऑप्शन ए लैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी excess of progesterone, option C excess of estrogen, option D lack of estrogen. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी लैक ऑफ estrogen। मेनोपॉज के टाइम पे ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज होती है, सीक्रेशन डिक्रीज होती है एंड एलएच एंड एफएसएच का इंक्रीज होती है, तो इसी वजह से मेनोपॉज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग ए प्रीनेटल चेकअप ए क्लाइंट आस्क्स ए नर्स व्हाई menstruation cease when pregnancy occur. The nurse best response would be that this occurs because of the option A reduction in secretion of hormone by ovaries, option B production of estrogen and progesterone by the ovaries, option C secretion of luteinizing hormone produced by the pituitary, option D secretion of estrogen hormone produced by the ovaries. मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन इज एक पेशेंट ने पूछा एक नर्स को कि इन प्रेगनेंसी में मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्यों स्टॉप होती है। ठीक है, तो मैंने वजह क्या है, तो आंसर इज ऑप्शन ए रिडक्शन ऑफ सीक्रेशन ऑफ हार्मोन बाय ओवारीज बिकॉज ऑफ if the female conceive started secretion of HCG which maintain the corpus luteum to secrete progesterone also called corpus luteum hormone continuously. So progesterone stimulate development of secretory uterine endometrium, increase thickness of uterine wall, facilitate the implantation of the fertilization ovum by reducing uterine motility एंड कॉजेज द पीरियड टू स्टॉप द ड्यूरिंग होल प्रेगनेंसी। मीनिंग क्या है इसकी कि मदर जब प्रेग्नेंट होती है उसी टाइम से HCG सीक्रेशन स्टार्ट हो जाती है, तो HCG क्या करती है व्हिच मेंटेन द कॉर्पस लूटियम टू सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब सीक्रेट होती है वो क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्टिमुलेट करती है डेवलपमेंट ऑफ द सेक्रेटरी यूट्राइन एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है, ठीक है, इनर लेयर दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम, यूट्राइन इनर लेयर। तो एंडोमेट्रियम क्या करती है, थिकनेस होती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ इम्प्लांटेशन फर्टिलाइज्ड ओवम जब इम्प्लांट होती है एंडोमेट्रियम में तो एक एनवायरनमेंट चाहिए, तो एनवायरनमेंट के लिए प्रोजेस्टेरोन क्या करती है, एंडोमेट्रियम को थिकनेस करती है, उसी वजह से ही पीरियड स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रीमेच्योर मेनोपॉज एक्सेप्ट। मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन इज टाइम से पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप क्यों हो जाती है। ऑप्शन ए ओस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन बी इनफर्टिलिटी, ऑप्शन सी डिक्रीज्ड कार्डियोवास्कुलर रिस्क, ऑप्शन डी वेसोमोटर सिम्टम्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर डिक्रीज कार्डियोवास्कुलर रिस्क। ये जो प्रीमेच्योर मेनोपॉज नेचुरल और आर्टिफिशियल होती है, कुछ डिजीज कंडीशन के वजह से मेडिसिन खा के कोई स्टॉप करती है, इधर कुछ डिजीज कंडीशन ये नेचुरली वो होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंटायर ट्रांजिशनल फेज बिटवीन सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड मेनोपॉज इज कॉल्ड। ऑप्शन ए मेनार्की, ऑप्शन बी क्लाइमेट्रिक, ऑप्शन सी प्यूबर्टी एंड ऑप्शन डी थैलेर्की। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी क्लाइमेट्रिक। दिस meaning of this question is a transitional phase means end of the sexual maturity and starting of the menopause. This phase called transitional phase. तो climacteric means the menopause in women, the period that marks the cessation of a woman's reproductive ability. तो इसकी मीनिंग क्या है, मदर कभी भी कंसीव नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो मेनोपॉज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है,
तो भासोमेटर इनेबिलिटी इंस्टेबिलिटी, दैट इज हॉट फ्लैशेस एंड नाइट स्वीट्स, इंसोम्निया, एट्रोफी ऑफ भाल्वोवाजाइनल टिश्यूज, vaginal ड्राइनेस, डिस्पेरेनिया, डिप्रेशन एंड पोर कॉन्सेंट्रेशन। पहले तो मीन्स स्टॉप हो जाती है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, इसके साथ ये सब भी होती है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इज हॉट फ्लैशेस, disturbed sleep and mood disturbance are seen during the period of option A gestational diabetes, option B menarche, option C menopause, option D ovulation। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मेनोपॉज। इन दिस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन की मेंस्ट्रुअल साइकिल लेके MCQ, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम OBG GNM थर्ड ईयर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।